ناول ایک تھی مثال رائٹر تمیم کس نمبر 7 شاہزین اچھا بچہ تھا لیکن وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ مثال نے بچوں کے چند ٹیسٹ لیے تھے جن میں شاہزین کے سب سے کم نمبر آئے تھے۔ اس نے شاہزین کو اپنے پاس بلا کر اسے سمجھایا کہ وہ پڑھائی میں بہت ویک ہے۔ اپنے والدین سے جا کر کہے کہ وہ اسے ٹیوشن دے یا پھر کوئی اچھا سا ٹیوٹر رکھ لے جو آپ کو پڑھائے آپ بہت اچھے بچے ہو، اگر ٹیوشن لوگے تو اور زیادہ اچھے اور بہتر نمبر لوگے۔ بس پھر کیا شاہزین نے مثال کی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں سوار کر لیا کہ اسے ٹیوشن لینی ہے۔ وہ پڑھانا چاہتا ہے تاکہ اپنی ٹیچر کو اور زیادہ اچھا لگے۔ اسکول سے آتے ہی وہ حدیقہ کے پیچھے لگ گیا تھا کہ اسے ٹیوشن لینی ہے، اسے پڑھانے کے لیے کسی ٹیوٹر کو ہائر کر لے۔ آج اسماعیل الوی، ملیسا اور میرم نقوی ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ سبھی گھر میں موجود تھے۔ ماس وائس سرمت کے حدیقہ چائے کی ٹوالی گھسیٹتے ہوئے لان میں چلی آئی جہاں پر سبھی بڑے اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ میرم اور آذر اندر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ شاہزین اس کے پیچھے پیچھے اس کے دوپٹے کے پلو سے پکڑے گھوم رہا تھا۔ سب کو چائے دیتی حدیقہ بار بار اسے ڈانٹ رہی تھی کہ اس کا دوپٹہ چھوڑ دے، مگر شاہزین بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ شاہزین حدیقہ کے دوپٹے کو پکڑے منہ پھیلائے کھڑا تھا۔ شاہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ ملیسا نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حدیقہ بیٹا آج شاہزین کو کیا ہوا ہے؟ اس کا موڈ خراب لگ رہا ہے۔ ملیسا نے چائے کا کپ حدیقہ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ ماما آج اس کا دماغ خراب ہو گیا، ابھی جا کر اس کا دماغ درست کرتی ہوں۔ ارے بیٹا بچہ ہے، اسے مارنا مت، جو کہہ رہا ہے وہ کر دو، بچے تو ضد کرتے رہتے ہیں۔ جی ماما۔ حدیقہ 2 کپ چائے کے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ننھا شاہزین بھی اس کے پلو کو پکڑے اس کے پیچھے چل پڑا۔ حدیقہ نے لاؤنج میں بیٹھے میرم اور آذر کو چائے پکڑائی۔ چائے لیتے ہوئے آذر کی نگاہ حدیقہ کے پیچھے اس کے پلو سے پکڑے کھڑے شاہزین پر پڑی جس کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ بھابھی اسے کیا ہوا ہے؟ آذر نے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں، جب سے آیا ہے مجھے تنگ کیے جا رہا ہے کہ اسے ٹیوشن پڑھنا ہے۔ اس کی ٹیچر نے کہا ہے کہ اسے ٹیوشن پڑھانے کا، اب جب سے اسکول سے آیا ہے میرا دوپٹہ پکڑے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اسے ٹیوشن دو تاکہ یہ پڑھائی میں اچھا بن جائے۔ اب میں کیا کروں اس کا؟ تو بھابھی آپ کوئی اچھا سا ٹیوٹر رکھ لینا، یا پھر ایسا کرے کہ میری سے کہہ دے وہ ہر روز شاہزین کو ٹیوشن پڑھانے آ جایا کرے گی۔ کیوں ڈاکٹرنی صاحبہ؟ یہ سن کر میرم نے آنکھیں گھمائی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، میری پہلے ہی پڑھائی سے جان جاتی ہے، اور دوسرا مجھے بچوں کو پڑھانا کیا بچے ہی پسند نہیں ہیں؟ میرم نے صاف انکار کر دیا اور الٹا وہ حدیقہ کو ایڈوائس دیتے ہوئے بولی۔ اب یا آپ آزی کسے کہہ دینا، وہ ہر روز شاہزین کو ٹیوشن دیا کرے گا، ویسے بھی فارغ بندہ ہے، ہر وقت فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ شاہزین کو پڑھا لیا کرے۔ کیوں آزی؟ آذر نے دانت پیس کر میرم کو گھورا اور پھر جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا۔ مجھ سے یہ بچے پڑھانے والا کام بالکل بھی نہیں ہوگا، سچ میں مجھے نہیں پتا کہ بچے کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ بھابھی آپ کوئی ٹیوٹر رکھ لینا یا پھر بھیا سے کہتے، آذر نے جٹ سے مشورہ دیا۔ تم کیوں نہیں پڑھاتے؟ اچھا ہوگا فیوچر کے لیے، اس طرح بچوں کو پڑھانے اور سنبھالنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی تمہاری۔ آذر بھابھی کی بات سن کر ہنس دیا۔ آپ بھی نہ بھابھی۔ شاہزین ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جٹ سے بولا، مجھے ان دونوں سے کسی سے بھی نہیں پڑھنا۔ دیکھ لو بھابھی، اسے ہم سے نہیں پڑھنا، آپ ایسا کریں نا کوئی پراپر ٹیوٹر رکھ لیں اس کے لیے۔ ہاں دیکھتی ہوں یہ اتنی آسانی سے آپ کہاں جان چھوڑنے والا ہے۔ رات کو بڑی مشکل سے حدیقہ نے شاہزین کو سلایا تھا، اب وہ سرمت کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمت کے آتے ہی حدیقہ نے شاہزین کی شکایت لگا دی۔ اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ سرمت محبت سے بیڈ پر گہری نیند سوئے ہوئے شاہزین کا گال چومتے ہوئے بولا، جب سے اسکول سے آیا ہے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس نے ٹیوشن پڑھنی ہے۔ ٹیچر نے اس سے کہا ہے کہ وہ پڑھائی میں بہت ویک ہے۔ ہاں تو پھر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ سرمت کوٹ اتار کر پاس کری حدیقہ کو تھماتے ہوئے بولا۔ ہاں تو پھر آپ رکھ لینا کوئی ٹیوٹر۔ حدیقہ اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے بولی، سوری جان مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت مصروف رہتا ہوں، تم خود ہی کچھ کر لو، یا پھر تم ایسا کرو کہ کل شاہزین کے اسکول جا کر اس کی ٹیچر سے بات کرو، شاید بات بن جائے۔ سرمت نے الٹا ایڈوائس دی تھی۔ ہاں اب مجھے یہ سب دیکھنا ہوگا، آپ تو اپنی ذمہ داریوں سے ہمیشہ سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کس کس کو دیکھوں میں، گھر کو بھی سنبھالوں اور اب شاہزین کو بھی۔ حدیقہ خفا ہو گئی تھی، جیسے آپ کی تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ یہ کہتی حدیقہ نے کوٹ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور خفگی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ سرمت نے گردن موڑ کر حدیقہ کو دیکھا جو اس سے خفا تھی۔ سرمت مسکرایا۔ حدیقہ کو صبح صبح تیار دے کر آذر بول پڑا، بھابھی یہ آپ صبح صبح تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ آذر کے ساتھ رمیہ بھی وہیں موجود تھی۔ حدیقہ ایک ہاتھ سے شاہزین کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا اسکول بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، شاہزین کے اسکول جا رہی ہوں اس کی ٹیچر سے بات کرنے۔ تو بھابھی آپ بھیا سے کہہ دیتی نا، اگر تمہارے بھیا یہ کام کرتے تو پھر مجھے کیوں جانا پڑتا؟ حدیقہ خفگی سے بولی، اب گھر کے کاموں کے ساتھ مجھے باہر کے کام بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں، اکیلی جان کیا کر کرتی پھروں، چلو حدیقہ شاہزین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ رمیہ تاسو سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آزی بیٹا حدیقہ واقعی میں بہت تھک جاتی ہے، گھر کے کام وہ کرے اور اب سے باہر کے کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے تاکہ میرم گھر آ جائے تو حدیقہ پر کام کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو۔ یہ سنتے ہی آذر کی بانچیں کھل گئی۔ نیکی اور پوچھ میں بالکل تیار ہوں ماما، آپ لوگ بس بسم اللہ کریں۔ رمیہ بیٹے کو یوں خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ حدیقہ اسٹاف روم میں بیٹھی مسال کا انتظار کر رہی تھی۔ پرنسپل نے مسال کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھایا کہ مقصود صاحب کی بہو اس سے ملنے آئی ہے تو ذرا ادب و احترام سے اس سے پیش آنا۔
जी मैडम। मसाल प्रिंसिपल के रूम से निकलकर सीधी स्टाफ रूम चली आई, जहाँ पर हदीका बैठी उसकी ही मुंतजर थी। अस्सलाम वालेकुम। मसाल ने स्टाफ रूम में दाखिल होते ही हदीका को सलाम किया। वालेकुम सलाम। हदीका उठ खड़ी हुई। दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। मेरा नाम हदीका समद है और मैं शाहजैन की वालिदा हूँ। हदीका ने अपना तारुफ करवाया। अच्छा हुआ कि आप आ गई। आप मुझे आपसे शाहजैन के बारे में बात करनी थी। प्लीज़ बैठ जाएं। मसाल ने हदीका को बैठने का कहा और खुद भी एक चेयर घसीट कर बैठ गई। मसाल अब हदीका को शाहजैन के बारे में बता रही थी कि वो पढ़ाई में बहुत वीक है, उसे ट्यूशन की ज़रूरत है। उसने बच्चों को जांचने के लिए उन सब के टेस्ट लिए थे जिसमें शाहजैन के नंबर्स बहुत कम आए थे। मसाल ने उसे शाहजैन के नंबर्स दिखाए, जिसे देखकर हदीका भी अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हो गई थी। आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर तवज्जो दें। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो एग्जाम्स में पास हो सकेगा। आप उसे घर में ट्यूशन दे दें ताकि वो पढ़ाई में बेहतर हो सके। आप उसे घर में ही किसी फर्द से ट्यूशन दिलाएं। हदीका ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। मैं हाउसवाइफ हूँ और सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती हूँ। समर शाहजैन के बाद सारा दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं। एक बहन है, माशाल्लाह से उसकी पढ़ाई से जान जाती है, और रहा मेरा देवर साहब, उससे बच्चे नहीं संभलते। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। हदीका एक दोस्त की राह मिसाल से अपना मसला शेयर कर रही थी। अगर ट्यूटर रख भी लूं तो आजकल बच्चों को कौन इतनी मेहनत से पढ़ाता है, अब आप ही देख लो। मैं समझ रही थी कि शाहजैन जहाँ बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन आज पता चला कि वो पढ़ाई में बहुत वीक है। मिसाल मुस्काई। ये बात तो आपने सही कही। हदीका सामने बैठी मिसाल को देखते हुए बोली, वैसे क्या आप शौकिया जॉब कर रही है? क्योंकि माशाल्लाह से मुझे पढ़ी लिखी और अच्छे घराने की लग रही हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हदीका को न जाने क्यों मिसाल के बारे में जानने में दिलचस्पी हुई थी। मिसाल मुस्काई। मेरी जी फैमिली में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल तनहा। घर में बोरियत महसूस हुई तो स्कूल ज्वाइन कर लिया। ओह अच्छा, आप ऐसे माइंड ना करें। अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप मेरे बेटे को पढ़ाने आ जाया करेंगी? क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे बेटे को अच्छा पढ़ा सकती हैं। क्योंकि आज तक किसी स्कूल टीचर ने मेरे बेटे की परवाह नहीं की, लेकिन आपने की। क्योंकि आपको अपने स्टूडेंट्स की परवाह है, और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर और कोई ट्यूटर नहीं हो सकती। शाहजैन के लिए मिसाल सोच में पड़ गई थी। हदीका जल्दी से बोली, आप सैलरी की फिक्र ना करें, मैं आपको मुंह मांगी सैलरी दूंगी। बस आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर मेरे बेटे को पढ़ाने आ जाया करें। सैलरी की बात सुनते ही मिसाल जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, पैसों का कोई मसला नहीं है। मुझे शाहजैन बहुत अजीज है, वो बहुत प्यारा बच्चा है, और सैलरी की कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसे ही शाहजैन को पढ़ाने आ जाया करूंगी। वो मेरा स्टूडेंट है, आप बेफिक्र रहे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वक्त निकाल कर शाहजैन को पढ़ाने आया करूं। हदीका ने उसका शुक्रिया अदा किया। तुम बहुत अच्छी हो मिसाल। हदीका ने बेतुकुल्फी दिखाई और उठकर मसाल को गले से लगा लिया। मसाल मुस्कुराई, उसे अच्छा लगा था। हदीका को जो खुद को गले से लगाना मसाल को वो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, फिर मेरा नंबर और घर का एड्रेस नोट कर लो। मसाल के उसका फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस नोट कर लिया था। हदीका जाते जाते उसे फिर से गले से लगाते हुए बोली, मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। जी मैं ज़रूर आऊँगी। मसाल ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़। हदीका मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल गई। हदीका थकी हुई गाड़ी में दाखिल हुई तो मामूल की तरह आज़र साहब लाउंज में ही विराजमान थे। हदीका को देखते ही सोफे पर बेतरतीबी से लेटा आज़र उठकर बैठ गया। क्या बना भाभी, बात बन गई आपकी? हदीका पर सोफे पर रखते हुए बोली, हाँ हो गया काम, अल्लाह का शुक्र है। तुम भी भैया भी वहीं चले? बेटा तुमने शाहजैन की टीचर से बात की? जी मामा, मैं शाहजैन की टीचर से मिली, वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कहा कि वो शाहजैन को पढ़ाने आया करेगी। हदीका मुस्कुराते हुए रमैया को मिसाल के बारे में बता रही थी कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। असर अपनी भाभी को ही देख रहा था, जिसे बहुत कम लोग ही पसंद आते थे, और अब शाहजैन की ये टीचर साहिबा भी उनकी गुड बुक में शामिल हो चुकी थी। मामा, उसने कहा कि वो शाहजैन को बगैर फीस से आकर पढ़ाया करेगी। वो बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी। वाह भाभी, आप तो इस लड़की की तारीफों में ज़मीन आसमान के खिलाफे मिलाने लग गई हैं। इतनी अच्छी लगी कि आपको? हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कम से कम तुमसे और मेरे से तो बहुत ही अच्छी है। जिसने मेरी परेशानी को बांधते फ़ौरन से हाँ कर दी, और एक तुम दोनों हो कि जिन्हें मेरी ज़रा भी फ़िक्र और परवाह नहीं है। हदीका नाराज़ होती वहाँ से उठकर किचन में चली गई। यार मामा, भाभी भी तो नाराज़ ही हो गई। नाराज़ होना बनता भी है उसका। घर में दो दो नकारा इंसान बने हैं, मगर मजाल है जो कोई अपने काम ज़िम्मे ले ले। हद है वैसे। तुम दोनों आगे जाकर क्या करोगे? जब अपने बच्चे होंगे तो कैसे संभालोगे उन्हें? आज़ा के होंठों पर शरीर मुस्कुराहट दौड़ गई। आप पापा और मरीसा आंटी है ना इन्हें संभालने के लिए। आजी, रुमैया ने उसे तंबिया की, लेकिन वो आज़र ही क्या जो बाज आ जाए। ना चाहते हुए भी रुमैया उसके साथ हंसी। तुम नहीं सुधरोगे आजी। हाँ तो सुधारने वाली ले आए ना जल्दी से। इंतजार किस बात का है, मैं जल्द ही सुधर जाऊंगा। अगर सुधारने वाली गार्ड आ जाए, पक्का प्रॉमिस। हाँ करते हैं कुछ, तुम्हारा बंदोबस्त भी। तुम्हारे पापा आ जाएं आज। ओ मामा, थैंक यू सो मच। आज़ा खुश होता पास बैठी रुमैया को खुद से लगाकर उसकी पेशानी मोहब्बत से चूम ली। मेरी प्यारी मामा, आई लव यू सो मच। बेटे को जो खुश देकर रुमैया धीरे से मुस्कुराई। शाम को अपने वादे के मुताबिक मसाल हदीका के दिए हुए पते पर नकवी हाउस चली आई थी। मसाल को देखते ही लान में फुटबॉल से खेलता शाहजैन भागकर उसके पास चला आया। टीचर आप आ गई। अरे शाहजैन बेटा, कैसे हो? मसाल ने मुस्कुराते हुए झुककर शाहजैन को प्यार किया। मैं बिल्कुल ठीक। आपकी मामा कहाँ है?
وہ اندر کچن میں ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاہزین اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ اسی وقت حدیقہ دوپٹے سے ہاتھ خوش کرتی کچن سے باہر نکل آئی۔ مسال کو دیکھ کر حدیقہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ارے مسال تم! حدیقہ نے فوراً سے اسے گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ مسال! ارے آپ شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اچھا شاہزین بیٹا، آپ ٹیچر کو اپنے روم میں لے جاؤ، میں بس ابھی آئی۔ جی ماما، میرے ساتھ آئیں ٹیچر۔ شاہزین مسال کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی وقت رمیہ اپنے روم سے نکل کر سیدھی وہاں چلی آئی۔ حدیقہ ملازمہ سے 2 کپ لانے کا کہتی کچن سے باہر نکلی تو رمیہ نے پوچھ لیا، یہ چائے کا کپ کس کے لیے بنوا رہی ہو، کوئی آیا ہے؟ جی ماما، وہ مسال آئی ہے۔ او اچھا، جاتے وقت اسے مجھ سے ضروری ملانا، میں اس بچی سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ماما، میں اس سے کہہ دوں گی۔ جی ماما ضرور۔ حدیقہ وہاں سے سیدھی شاہزین کے روم میں چلی آئی جہاں پر مسال شاہزین کو کوئی سوال سمجھا رہی تھی۔ اسے جو اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے دیکھ کر دروازے پہ کھڑی حدیقہ مسکرائی۔ ارے آپ آئیں، اندر آئیں نا۔ مسال نے حدیقہ کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو اسے اندر بلا لیا۔ شاہزین بیٹا، اب جب تک یہ والا کویسچن حل کرو۔ جی ٹیچر۔ شاہزین سوال حل کرنے لگا۔ حدیقہ مسال کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے یہاں آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے مسال، سچ پوچھو تو تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے 2 کپ چائے لے آئی تھی۔ ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میڈم، اپنے خواہ میں تکلف کیا۔ مسال نے چائے کے کپ کو تھامتے دیکھتے ہوئے کہا، اس میں تکلف کی کوئی بات ہی نہیں ہے مسال، تم خود کو اس گھر کا فرد سمجھو اور یہ مجھے میڈم بلانا بند کرو۔ میں تم سے بڑی ہوں، تم مجھے بابی کہہ کر پکار سکتی ہو، آزی کی طرح یا پھر میرم کی طرح اپیا، جو تمہارا دل کرے۔ میں تمہیں غیر نہیں سمجھتی۔ اس اپنائیت پر مسال کا دل ابھر آیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ شادی کا لفظ سن کر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے بس سر نفی میں ہلایا، کیونکہ وہ حدیقہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اور ویسے تم بہت پیاری لڑکی ہو، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی پیارا، نیک اور محبت کرنے والا ہم سفر عطا کرے، آمین۔ اپنی دعا پر حدیقہ نے خود ہی آمین کہی تھی۔ تھوڑی دیر تک حذیفہ نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی اور پھر ملازمہ کے بلانے پر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹہ شاہزین کو پڑھانے کے بعد مسال گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ مسال چادر درست کر کے چہرے پر نقاب لگاتے ہوئے شاہزین سے بولی، آپ کی ماما کہاں ہے بیٹا؟ ٹیچر وہ تو کچن میں کام کر رہی ہیں، میں بلاؤں کیا انہیں؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، انہیں کام کرنے دے، ڈسٹرب مت کرے انہیں، میری طرف سے بس خدا حافظ کہہ دینا آپ۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اوکے ٹیچر۔ شاہزین اسے گیس تک چھوڑنے گیا تھا، وہیں سے مسال نے رکشہ لیا اور گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ شاہ کو باہر آتے دیکھ کر حدیقہ نے پوچھ لیا، مسال کہاں ہیں؟ وہ تو چلی گئی۔ رمیہ نے حیرت سے کہا، چلی گئی؟ جی دادو، انہوں نے ماما کا پوچھا تھا، میں نے بتایا کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں ڈسٹرب نہ کروں اور وہ آپ کو خدا حافظ کہہ کر گئی ہیں۔ ماما بڑی عجیب لڑکی ہے، مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ رمیہ زریلا بڑبڑائی، ماما آپ کل اس سے مل لینا نا، شاید وہ بھول گئی ہوگی، حدیقہ نے کہا، جس پر رمیہ نے بس ہولے سے سر ہلا دیا۔ وہ جو طے کر چکی تھی کہ اب کستوری جیمز کے سوا کسی سے بھی دوستی نہیں کرے گی، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی سدرا اور نمل سے اس کی دوستی ہو گئی تھی اور وہ تینوں اب ہر وقت ساتھ ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ مسال کو بھی اچھا لگتا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اکثر کستوری جیمز کی اسے بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ اسے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کسی دن حشام مالک کو ان کی بنک نہ پا جائے۔ اگر اسے ان دونوں کے بارے میں پتہ لگ گیا تو اب اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں کستوری جیمز کی طرح وہ ان دونوں کو بھی جان سے نہ مار ڈالے۔ آج سنڈے تھا تو اسکول کی چھٹی تھی۔ مسال ناشتہ تیار کر چکی تھی، اب بس چائے بنانا باقی تھی، جس کا پانی اس نے چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ تبھی سرمت وہاں چلا آیا۔ ارے وکیل صاحب آپ یہاں؟ ہاں بھائی، میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ٹیچر صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو چلا آیا۔ سرمت کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مسال نے ناشتہ ٹیبل پر پہلے سے ہی لگا لیا تھا، اب وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ سرمت کو دیکھ کر اس نے 2 کپ نکالے تھے۔ کیسی ہو تم؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، چائے کپ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، گڈ جاب۔ آپ کو پتا ہے میں اب ایک بچے کو ٹیوشن بھی دینے جانے لگی ہوں۔ مسال خوش ہو کر اسے یہ خبر دے رہی تھی۔ واؤ دیٹس گریٹ۔ سرمت نے اس کے کام کو سراہا، بہت اچھا کر رہی ہو، اس طرح تم بور بھی نہیں ہوگی۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ مسال نے چائے سے بڑا کپ سرمت کے سامنے رکھ دیا۔ تھینک یو۔ سرمت نے شکریہ ادا کیا۔ آپ ناشتہ کریں؟ نہیں شکریہ، تم کر لو، ناشتہ میں گھر سے کر کے آیا ہوں۔ مسال خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے سرمت بول پڑا، ویسے اس گنڈے کا نام کیا ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ گنڈے کا نام سنتے ہی چائے پیتی مسال کو اچو کر لگ گیا، وہ بری طرح سے کھانسنے لگ گئی۔ ارے بھئی ایسا بھی کون سا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے، نام ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو کب سے اس گنڈے میں دلچسپی ہونے لگی؟ کیونکہ میں دلچسپی رکھتا ہوں، مجھے اس گنڈے کے بارے میں جاننا ہے، مگر میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی۔ مگر کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری کہانی کیا ہے، کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ مسال سامنے بیٹھے سرمت نقوی کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنا چکی ہوں۔ مسال نے نظریں چرائیں، اور میں تمہاری وہ سنائی گئی گسی پٹی اسٹوری سے ایگری نہیں کرتا، مجھے سچ جاننا ہے۔ کیا کر لیں گے آپ سچ جان کر؟ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کے بس کا کام ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا میرے بس میں ہے اور کیا نہیں۔ دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے؟
انسان سب کچھ کر سکتا ہے، جو انسان ماؤنٹ ایورسٹ سر کر سکتا ہے، خلا میں جا سکتا ہے، تو پھر ایک بدماش گنڈے کو قابو کرنا اور اسے ٹھکانے لگانا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ ہاں لیکن وہ کوئی عام گنڈا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وہ کوئی ایلین ہے یا پھر اس کے پاس کوئی سپر پاور ہے جس کا ہم انسان مقابلہ نہیں کر سکتے؟ سرمد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وکیل صاحب مجھے تنگ نہ کرے پلیز، مسال بے بس ہوئی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سرمد نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر مجھے آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو پھر میں یہاں نہ ہوتی۔ مسال سامنے رکھے چائے کے کپ کے گرد انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ تو پھر بتا کیوں نہیں رہی؟ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو کیونکہ میں آپ جیسے ہمدرد اور مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اب کسی اور کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میں پہلے ہی اس جنگ سے اپنوں کو کھو چکی ہوں، اب مجھ میں مزید کسی اپنے مخلص اور ہمدرد انسان کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسال کی آواز بھی گئی تھی، اب وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ سرمد نے گہری سانس لی، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ روتی ہوئی مسال کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے بولا۔ مجھ پر یقین رکھو مسال، میری نیت بالکل بھی بری نہیں ہے۔ جس دن تم نے مجھے بائی کہہ کر مجھ سے مدد مانگی تھی، اسی دن ہی میں نے تمہیں اپنی چھوٹی بہن مان لیا تھا۔ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنی بہن مان لیا۔ اب تم بھی مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور جو بھی تمہیں مسئلہ ہے یا پھر کوئی پریشانی ہے مجھ سے شیئر کرو۔ میں ایک بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا۔ مجھ سے جو بھی ہوا میں اپنی بہن کے لیے کروں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کروں گا۔ تم سوچ لو، جتنا ٹائم ہے لے لو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سرمد نے اس کا سر ہولی سے تپتپایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مسال ٹیبل پر سر رکھتی رو پڑی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی سرمد بھائی، کیونکہ میں آپ جیسے مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی امی خالہ کستوری کو کھو دیا، لیکن آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ اگر حشام مالک کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی بھی نقصان ہوئے بغیر یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ جب تک میں یہاں رہوں گی آپ کی اور آپ کی فیملی کے سر پر خطرہ منڈراتا رہے گا۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مثال ارادہ کر چکی تھی کہ وہ یہاں سے بہت جلد چلی جائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے سرمد نقوی یا پھر اس کی فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ حشام مالک کے بھیجے گئے بندے اسے پورے کراچی میں ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور بالآخر انہیں اسی جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی جہاں پر مسال نظر آ رہی تھی۔ یہ اس ریسٹورنٹ کی سی ٹی وی فوٹیج تھی جہاں پر وہ سرمد کے ساتھ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ رحمت شاہ نے یہ خوشخبری حشام مالک کو سنائی کہ ان لوگوں نے مسال کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ حشام مالک کو خوشی ہوئی تھی کہ بالآخر مسال مل گئی ہے۔ سر ہم نے انہیں کسی مرد کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ کسی مرد کے ساتھ؟ حشام مالک کی غصے سے رگیں تن گئی۔ جی سر، پتہ لگاؤ کہ وہ آدمی کون ہے اور اس کا میری بیوی سے کیا تعلق ہے، اور میری طرف سے تم لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے، وہ جہاں آدمی کہیں بھی ملے اسے شوٹ کر دو۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر رکھنے کی، اس کے ساتھ گھومنے کی؟ جلدی کرو اور مجھے اس آدمی کا پس منظر بتاؤ، اور اس سے پہلے مجھے میری بیوی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ حشام مالک غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، ہم اس آدمی کی پوری بایوگرافی نکال کر آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم بتا دیتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اور اس سے پہلے اس آدمی کی موت کی خبر سننا چاہتا ہوں جس کی مدد کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے اتنی دن دور رہی۔ جی سر، ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، وہ جو کوئی بھی ہے ہم اسے مار ڈالیں گے۔ رحمت شاہ نے حشام مالک کو تسلی دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب ان لوگوں کو مسال کے گھر کا پتہ لگانا تھا کہ وہ آخر رہتی کہاں ہے، اور اس کی مدد کے پیچھے کس آدمی کا ہاتھ ہے جس نے مسال کو چھپا کر حشام مالک جیسے آدمی سے دشمنی مول لے لی تھی۔ مسال حشا سین کو پڑھا رہی تھی جب یاسر بنا ناکیہ حدیقہ کو ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آیا۔ بابی جان، میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ مل ہی نہیں رہی، میں کب سے ڈھونڈ رہا۔ آزر بنا ناکیہ جو ہی اندر داخل ہوا اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ مثال نے آزر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً سے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ او آئی ایم سو سوری، آزر کو بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ آزر فوراً سے الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا تھا۔ آزر کے جاتے ہی مسال نے سکون کی سانس لی اور اپنے چہرے سے چادر ہٹا لی۔ آج مسال جانے سے پہلے رمیہ سے ملتی۔ رمیہ نے اس کا حال احوال پوچھا، چادر سے خود کو اچھی طرح سے کور کیے، انتہائی ادب و احترام سے جھکا کر جواب دیتی یہ رمیہ کو بہت اچھی لگی۔ آزر بلو شرٹ پر بلیک پینٹ پہنے، بالوں کو اچھی طرح سے سیٹ کیے، خوشبو بکھیرتا بالکل تیار وہاں چلا آیا۔ تب تک مسال بھی اجازت لے کر اٹھ چکی تھی۔ آزر جو سیٹی کی دن بجاتا، گاڑی کی چابیاں اچھالتا جو ہی یہاں سے گزرا، حدیقہ نے اسے روک لیا۔ آزی، تم باہر جا رہے ہو کیا؟ جی بھابی، میری کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا کیا؟ نہیں، وہ بس جاتے ہوئے اگر ممکن ہو سکے تو مسال کو بھی اس کے گھر ڈراپ کر دیتے تو۔ آزر کا منہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آزر کچھ کہتا مسال جٹ سے انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں بھابی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، اللہ حافظ۔ یہ کہتی مسال وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑا آزر اسے تکتا رہ گیا۔ عجیب لڑکی ہے۔ اسے عجیب نہیں بلکہ خوددار کہتے ہیں دیور جی، مسال بہت اچھی لڑکی ہے۔ حد ہے ویسے بھابی، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آپ اس لڑکی کے گن گانے لگی ہیں۔
हाँ वो है ही ऐसी। चले ठीक है, अभी मैं भी चलता हूँ, शाम को बात होती है, गुड बाय लेडीज। आजर उन्हें गुड बाय कहता ही वहां से निकल गया। अहमद शाह जल्द ही ये पता लगाने में कामयाब हो गया था कि मिसाल की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस शहर का नामूर वकील सरमद मकसूद नकवी था। ओ तो ये बात है, मकसूद नकवी का बेटा अब मेरे मुकाबले आ रहा है। उसने अच्छा नहीं किया मुझसे पंगा लेकर। पहले उसे अच्छे से बिठाकर समझा और उसे बताओ कि उसने किसके छत्ते में हाथ डाला है। अगर वो मान गया तो अपनी हरकतों से बाज आ गया तो ठीक, वरना फिर उसका हशर भी वैसा ही करना जैसे पहले लोगों का कर चुके हो। मैं उसे इसी वक्त नहीं मारना चाहता क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा है। उसे एक मौका देना चाहता हूँ। अगर ना मानना तो फिर भी मुझे अच्छी तरह से समझाना आता है। ओके बास, हो जाएगा। हशाम मालिक के आदमी ने मिसाल का स्कूल से लेकर घर तक पीछा किया था, लेकिन वो लोग जान गए थे कि सरमद मकसूद नकवी ने मिसाल को कहाँ रखा हुआ है। हशाम मालिक ने उन्हें कुछ दिनों के लिए पुरसुकून रहने का कहा था कि अभी फिलहाल कोई कदम ना उठाएं। वो खुद ही उन्हें हुक्म देगा जिस दिन उन्हें मिसाल को उठाना होगा, क्योंकि वो किसी भी नजरों में आए बगैर कोई बिखेरा किए बगैर मिसाल को वापस लाना चाहता था। सब खाने की मेज पर बैठे रात का खाना खा रहे थे जब आजर ने पानी का गिलास उठा लिया। उसे उल्टे हाथ से पानी पीते देखकर पास बैठे शाहजैन ने उसे टोक दिया। चाचू, सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, टीचर कहती है कि उल्टे हाथ से शैतान पानी पीता है। आजर ने एक निगाह शाहजैन पर डाली और दूसरी खुद को तकते मामा पापा सलमत भैया और हदीका भाभी पर डाली। आजर को इस टीचर पर शदीद गुस्सा आया था। पहले उसकी वजह से उसे गाना गाना छोड़ना पड़ा क्योंकि शाहजैन ने उससे प्रॉमिस दिया था और अब वो उनकी जिंदगियों में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो बदमजा होकर हदीका को देखते हुए बोला, यार भाभी, आपने ये ट्यूटर रखी या फिर कोई तबलीगी जमात की कारकुन? मुझे तो लगता है कि ये किसी तबलीगी जमात की साथी है जो इनसे बिछड़कर गलती से स्कूल टीचर बन गई है। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? रुमैया ने पूछा। यार मामा, ये बच्चे के दिमाग में जाने क्या कुछ उल्टा सीधा डाल रही है। अब ये छोटा मुझे बात बात पर टोकने लगा है। जब देखो मुझे तबलीग देने के लिए आ जाता है। पहले कहा कि गाना मत गाओ, गुनाह मिलेगा, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। कल कह रहा था कि चाचू नमाज पढ़ो वरना कब्र में जाते ही आपको बहुत सारा अजाब मिलेगा। अब ये क्या बात हुई भला? बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कौन डालता है भला? ये लड़का उस टीचर से पढ़ नहीं रहा बल्कि तबलीग सीख रहा है। मेरी माँ ने तो अब टीचर ही बदल दे। लगता है कि किसी तबलीगी जमात की शादी है। कल मुझे देखते ही उसने फौरन से पर्दा कर लिया था। आजा की दहाइयाँ सुनकर वो सब दबी दबी हंस रहे थे। ये क्या आप लोग हंस रहे हैं? सरमद ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, ये बताओ कि तुम्हें मसला किस चीज़ से है? इससे कि तुमने उसे पर्दा किया या फिर शाहजैन के टोकने पार के पानी सीधे हाथ से पियो? अगर सच पूछो तो सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस्लाम में मौसीकी के बारे में सख्त वही सुनाई गई है। और दूसरा, पानी हमेशा सीधे हाथ से ही पीना चाहिए, ये तो तुम भी जानते हो। और तीसरा, हमेशा ये भी है कि नमाज पढ़ने का कितना सख्त अजाब मिलेगा, ये जानते हुए भी कि तुम भी हमारे घर में सिर्फ तुम ही हो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो बताओ कौन सी बात उसने गलत कही? क्या यार भैया, आपने तो मुझे दम से ही पकड़ लिया है। आजा खफा हुआ था। ये सारा कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। न जाने क्यों उसे उस लड़की ने आप सब लोगों पर कौन सा जादू कर दिया है। पहले तो सिर्फ भाभी उसके गुण गाती थी, अब तो मेरी पूरी फैमिली ही उसकी मदाह हो गई है। आजा मुंह बनाता खाना खाने लगा। आजा की ये खुफगी देखकर सरमद के साथ बाकी फर्द भी मुस्कुरा दिए। मिसाल की सिद्रा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब अक्सर फारग वक्त में सिद्रा के घर चक्कर लगाने जाती थी। वहाँ रमल के साथ सिद्रा की कजन्स भी होती, जिससे उसका बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता था। आज भी वो सिद्रा से मिलकर वापस घर के लिए रवाना हो गई। टैक्सी न मिलने की सोच में वो पैदल ही जा रही थी, जब सरमद की गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी। काली चादर में लिपटी मिसाल को वो बहुत दूर से ही पहचान लेता था। गाड़ी के पास रुकते ही वो पहले पहल तो वो डर गई थी, ये सोचकर कि कहीं हशाम मालिक के गुंडे ना हो। लेकिन गाड़ी में बैठे सरमद नकवी को देखकर उसकी जान में जान आई थी। अंदर बैठो उस्तानी साहिबा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सरमद ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मिसाल कुछ भी कहे बगैर गाड़ी में बैठ गई। मिसाल के गाड़ी में बैठते ही सरमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ कैसे? मैं एक क्लाइंट से जहाँ मिलने आया था, तुम पर नज़र पड़ी थी। ओह अच्छा, तो कैसा रहा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाल ने मुस्कुरा कर कहा। इतवाक से आज़म मीरम को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। इतवाक से ट्रैफिक जाम होने की सोच में उसकी गाड़ी भी वहीं रुक गई थी। जब उसकी निगाह बराबर बैठी गाड़ी में अपने भैया और उसके निकाबल लड़की पर नज़र पड़ी थी, वो इन्हीं लड़की के साथ फिर से देखकर चौंक गया। वो उसे कैसे भूल सकता था? ये तो उस दिन भी भैया के साथ ही ना, जब हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए थे, और फिर आज भी भैया उस लड़की के साथ हैं। ये क्या माजरा है आखिर? आज़र ने मीरम को भनक पड़े बगैर अपने भैया की गाड़ी का पीछा किया था, और तब उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने गाड़ी से उस लड़की को निकलकर अपने भैया के घर में दाखिल होते देखा था। सरमद वहां से गाड़ी वापस ले गया था। अलबत्ता वो लड़की घर के अंदर चली गई थी। ये सब क्या है? क्या भैया का उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है, या फिर कहीं ये लड़की भैया के साथ किसी रिलेशनशिप में है? क्या भैया भाभी को सच में धोखा दे रहा है? आज़र का सीना जलने लगा था। उसे रोना आ रहा था कि उसका भैया ऐसा कैसे कर सकता है। एक गैर लड़की को उसने अपने घर में रखा हुआ है। वो मीरम को उसके घर ड्रॉप करता, राह ड्राइव करता सीधा जहाँ चला आया था, क्योंकि वो उस लड़की से हकीकत जानना चाहता था। खुदा बख्श को मिसाल ने किसी काम के लिए मार्केट भेजा हुआ था। तभी आज़र गाड़ी से उतरता गेट तक आया और बेल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। घंटी बजती चली जा रही थी। मिसाल दौड़ती हुई वहां आई कि कौन? दरवाज़ा खोलो।
आप कौन? मसाल ने डरते हुए पूछा, क्योंकि ये तो ना खुदा बख्श की आवाज़ और ना ही सम्मत की। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। आज़ाद दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारते हुए बोला, आप है कौन? मसाल दरवाजे से लगी खड़ी पूछने लगी, इस घर का मालिक हूँ, दरवाज़ा खोलो। घर का मालिक मसाल बड़बड़ाई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अपना चेहरा कवर करती उसने सर बाहर को निकाला। सामने खड़े आज़र को देखकर उसका मुंह हैरत बेयकीनी से खुल गया था। आप जी, मैं क्या चाहती हो तुम लड़की? मैं, मसाल ने उल्टा सवाल किया था। हाँ, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मसाल ने दोबारा से सवाल पूछा था, जिस पर गुस्से से आज़र ने गेट पर मुक्का दे मारा, जिस पर खौफ से मसाल की चीख निकल कर रह गई। स्टूपिड गर्ल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कितने पैसे लोगी मेरी भैया की जान छोड़ने की? बताओ, कितनी कीमत चाहिए तुम्हें? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो मोहतरमा, आज़ाद दांत पीसते हुए बोला। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपके भैया मेरे पास नहीं है। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं भैया आपके भैया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मसाल मासूमियत की सारी हद एक राज करते हुए बोली, जिस पर अजय का गुस्सा आसमान को छू गया, क्योंकि वो लड़की अभी चंद मिनट पहले उसके भैया के साथ गाड़ी में थी, उनके ही घर में रह रही थी, और वो इसके मुंह पर झूठ बोल रही थी कि वो उसके भैया को नहीं जानती। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे भैया की ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना जो मैं तुम्हारा हाल करूँगा ना, तो आईना देखने के भी काबिल नहीं रहोगी तुम। सुना तुमने? आज़ा हालांकि बिल दाड़ा, जिस पर मसाल खौफजदा होती उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर गई। उसकी ये हरकत आज़ा को तपा गई थी। स्टूपिड एडिट गर्ल, दरवाज़ा खोलो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आज़ा ज़ोर ज़ोर से गेट पीटने लगा। मसाल गेट से टेक लगाए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। पता नहीं कहाँ से ये पागल लड़का उठकर इधर आ गया है। मैं तो इसके भैया को जानती भी नहीं हूँ। कैसी बातें कर रहा है? मसाल खुद से बड़बड़ाई। गेट के बाहर खड़ा आज़ब गुस्से से बड़ा चीख रहा था। तुम जैसी लड़कियां दूसरों का हंसता बसता घर उजाड़ देती हैं। शर्म नहीं आती तुम लड़कियों को? क्या बकवास कर रही हैं आप? मसाल को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बोल पड़ी। जुबान चला रही हो तुम मेरे साथ? एक तो गलत हरकत की है और दूसरा मेरे साथ बहस कर रही हो। आज़र ने जोर से गेट पर लात मारी, जिस पर गेट हिलकर रह गया और मसाल अपना दिल थामकर जल्दी से गेट से दूर हुई थी। अजीब पागल लड़का है, दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? क्या कहा पागल? आज़र ने उसकी आवाज़ सुननी थी। वो दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा। दरवाज़ा खोलो स्टूपिड गर्ल, दिमाग तो मैं तुम्हारा दुरुस्त करूंगा। बस एक बार कहीं मिल जाओ तुम मुझे, वो हाल करूंगा कि खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। मसाल ने खौफ से थूक निकली, ये तो पागल लग रहा है। मसाल डरकर अंदर की तरफ भाग गई। आज़र काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीट रहा, लेकिन मसाल ने दरवाज़ा न खोला। वो गुस्से से बड़ा वहाँ से चला गया। अंदर किचन में खड़ी मसाल बहुत खौफजदा हो गई थी। ये लड़का तो हदीका भाभी का देवर था भी, ये जहाँ क्यों आया? क्या उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है क्या? आखिर उसके भैया का मुझसे क्या ताल्लुक? अजीब पागल लड़का था। मैं तो हदीका भाभी के शोहर से मिली भी नहीं। ज़रूर ये लड़का पागल दीवाना लगता है। मुझे इससे दूर ही रहना होगा। क्या पता कल को फिर से कोई नया इल्ज़ाम लगा दे। दूसरे दिन जब मसाल नकवी हाउस में दाखिल हुई तो सबसे पहला उसका सामना आज़र मकसूद से ही हुआ था। उसे देखते ही मसाल का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। मर गई मिसाल, तुमसे तो तुम्हें जहाँ भी मिल गया। वो दिल ही दिल में खुद से बोली। लेकिन आज़र का रिएक्शन काज से बहुत ही मुख्तलिफ लगा था। वो उसे एक निगाह देखने के बाद वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसे नीचे आते देखकर वो जो आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी फौरन से नीचे को उतर गई। उसे जो उल्टे कदमों सीढ़ियों से नीचे आते देखकर आज़र को हैरानी हुई थी कि इससे क्या हुआ। जब आज़र उसके पास से गुजर रहा था तो वो दीवार से लगी खड़ी थी। आज़र उसे यूं डरी सहमी देखकर, दीवार से लगी खड़ी देखकर लापरवाही से कंधे उचकाता वहां से चला गया। मसाल का दिल जोरों का धड़क रहा था कि अभी वो उसके चेहरे से नकाब हटाएगा और एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ देगा। लेकिन उसका ये पुरसुकून रवैया मसाल के लिए बहुत हैरान कुन था, क्योंकि कल जिस तरह से वो उस पर गुस्सा हो रहा था, आज उसे जो पुरसुकून देखा उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसे क्या हो गया था, मुझ पर इतना क्यों चला रहा था। आखिर वो समझ गई कि यकीनन उस लड़के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। अब वो उससे बच के रहेगी, यही सोच रखा था उसने। वो शाहज़ैन को पढ़ा रही थी जब हदीका उसके लिए और अपने लिए चाय का कप ले आई थी। शाहज़ैन मसाल का दिया गया क्वेश्चन हल कर रहा था और मसाल हदीका के साथ बैठी गपशप लगा रही थी। मसाल ने कुछ सोचा और फिर हदीका से पूछ बैठी, भाभी ये लड़का जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, जो अभी भी बाहर मिला था, वो आपका देवर है ना? कौन? आज़े की बात कर रही हो तुम? जी, शायद यही नाम है उनका। हदीका हंसी। हाँ, वो मेरा देवर ही है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक तो है ना? मसाल ने डरते डरते पूछा था और उसका ये अजीबोगरीब सवाल सुनती हदीका कहकर लगा कर हंसी। आप हंस क्यों रही हैं भाभी? मसाल ने मासूमियत से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बिल्कुल फिट फाट है। वैसे तुम्हें क्यों शक हुआ उसके ज़हनी तवाज़ुन पर? नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा था कुछ ऐसा। मसाल नजरें चुराते हुए बोली। और हदीका अपनी मुस्कुराहट को जब्त करने की कोशिश में सिरक पड़ गई थी। वो हंसी को मुश्किल रोके वहां से निकल गई थी। आज़र सोफे पर बैठा फुटबॉल का मैच देख रहा था जब हदीका हंसती हुई सीधी वहां चली आई। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? सब खैरियत है? आज़र मुस्कुराते हुए हदीका को देखकर पूछ बैठा। हदीका आज़र के पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है आज़ी, मसाल तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? अब क्या कह रही थी मोहतरमा? आज़र पूरी तरह से हदीका की तरफ मतवज्जा होते हुए पूछने लगा। वो पूछ रही थी कि तुम्हारा तवाज़ुन तो ठीक है ना? उसे लग रहा है कि तुम्हारा तवाज़ुन ठीक नहीं है क्या? आज़र तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा था। ये तबलीगी कारकुन मुझे पागल समझ रही है।
हदीका ने हंसते हुए इस बात में हिलाया। हद है वैसे, उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मुझे पागल बोल रही है। आज़ा को याद आया कि अभी चंद मिनट पहले वो उसे देखते ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो आप समझा वो इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि वो मुझे पागल समझ रही है। व्हाट अ नॉनसेंस। आज़ा तंजर हंसा। इसी वक्त खुद को अच्छी तरह से चादर से कवर की मसाल शाह से गुजरी तो उसे देखते ही हदीका उठ खड़ी हुई। तुम जा रही हो मसाल? जी भाभी, मसाल ने आहिस्ता से कहा जब उसकी निगाह सोफे पर बैठे आज़ा की तरफ उठी थी, जो सोफे पर बैठा था, हाथ की मुट्ठी थोड़ी के नीचे जमाए उसे ही देख रहा था। उसे जो घूरने पर मसाल की जान हवा हुई थी। हदीका ने आज़र को देखते हुए कहा, आज़ी जाओ मसाल को उसके घर ड्रॉप कर दो। ये सुनते ही मसाल आज़ा के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं भाभी, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये कहती मसाल फ़ौरन से वहाँ से भागने के अंदाज में निकली थी। उसके जाते ही हदीका कहकर लगा कर हंसी थी। क्या भाभी यार, अब मुझ पर हंस रही हैं? मुझे लगता है कि बेचारी तुमसे बहुत ज़्यादा डर गई है। मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जो तो अब तुम्हें ही पता होगा ना मिस्टर, कि आखिर वो बेचारी तुमसे क्यों डरने लगी है अचानक से? बताओ क्या बात है? कहीं तुमने उसे छेड़ा वेड़ा तो नहीं है ना? बताओ। हदीका के कहने पर आज़ा की आंखों के सामने मुंह भी खुल गया था। खुदा का खौफ करे भाभी, मैं भला उसे क्यों छेड़ूंगा? उसमें ऐसा है ही क्या जो मैं उसे छेड़ूंगा? मैंने आज तक बस मैरी के सिवा किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओह, मेरा देवर तो बहुत ही मासूम और फर्माबरदार है। हदीका हंसी। आज़ा ने तासुब से सर नफ़ी में हिलाया। मसाल पीछे देखती भागती जा रही थी। जब अंदर दाखिल होते हुए समद नकवी से वो जोर से टुकरा गई। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो अपनी धुन में माजरत करती जो ही अपना सर ऊपर को उठाया, सरमद को देखकर वो हैरान रह गई। और यही हाथ सरमद नकवी का भी था जो मसाल को जहाँ देखकर हैरान हुआ था। मसाल पीछे को देखती घबरा कर आहिस्तगी से बोली, सरमद भाई आप यहाँ कैसे आ गए? आपको किसने बताया कि मैं जहाँ पढ़ाने आती हूँ? मसाल का स्वाद सुनकर सरमद को जोरों की हंसी आई। पागल लड़की, ये मेरा घर है, ये तो जाहिर है यहीं आऊँगा ना। क्या कहा? आपका घर? मसाल की चीख बेसाख्ता थी। फिर फौरन से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आहिस्तगी से बोली, तो इसका मतलब है कि मसाल ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। जिस पर सरमद मुस्कुराते हुए सर असबात में हिलाते हुए बोला, जी बिल्कुल, आप सही समझी। सरमद को चंद सेकंड लगे थे सारी सिचुएशन को समझने में। ओ मेरे खुदा, मसाल ने अभी अपने खुले मुंह पर हाथ रखा हुआ था। इसका मतलब है कि शाहजैन आपका बेटा और हदीका भाभी आपकी बीवी हैं? जी हाँ। सरमद दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए मजे से बोला। ये मुझे खबर क्यों नहीं हुई? यानी कि उस दिन आज़ा ने इसलिए वहां आकर शोर मचाया था क्योंकि वो मुझे समझ रहा था कि सरमद उसका कोई चक्कर। मसाल आगे कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी और अपने कानों पर दोनों हाथ रखे वहां से तेजी से निकल कर भागी। अरे मसाल सुनो तो मसाल। सरमद उसे आवाज़ देता रह गया मगर वो ना रुकी। सरमद सा झटकता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। हशाम मालिक ने रहमत शाह को हुक्म दिया था कि उन साल को वहां से उठा लाएं। हुक्म देते ही रहमत शाह अपने बंदों के साथ रवाना हुआ। चूंकि गुरगर तो वो पहले ही देख चुके थे, अब बस अंदर जाकर मसाल को वहां से उठाना था। मसाल इस वक्त किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी जब घर के बाहर दो गाड़ियां आकर रुकी। रहमत शाह अपने मसला साथियों समेत घर के अंदर जबरदस्ती घुसने लगा, जिस पर खुदा बख्श ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो बुरा आदमी उन चार हट्टे कट्टे आदमियों का मुकाबला न कर सका और रहमत शाह ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनकर मसाल का दिल दहल गया। ये सब क्या था? मसाल का पहला शाकी हशाम मालिक के बंदों की तरफ गया था। तभी गेट खुला और रहमत शाह अपने साथियों समेत घर में दाखिल हुआ। उन्हें देखते ही मसाल की टांगें कांपने लगी। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? मसाल तेजी से किचन से निकली और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करती जल्दी से हाल का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मसाल इर्द गिर्द कुछ तलाश करने लगी। रहमत शाह और उसके साथी हाल का दरवाज़ा बजाने लगे। मसाल खौफजदा होती दीवार से जा लगी। खौफ से उसके पसीने छूट गए थे। उसे पक्का यकीन था कि इस बार वो नहीं बच पाएगी। रहमत शाह और उसके साथी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मसाल को यकदम सरमद का दिया गया फ़ोन नंबर याद आया। वो तेज़ी से कमरे में गई और सरमद का दिया कार्ड उठाकर अब वो कांपते हाथों से सरमद का नंबर मिलाने लगी। गाड़ी ड्राइव करते सरमद ने पहली ही बैल में उसकी कार उठा ली थी। जी फरमाइए, कौन बात कर रहा है? सरमद भाई, मैं मसाल बात कर रही हूँ। अरे मसाल, क्या हुआ? सब खैरियत? मसाल को जो घबराए और हामते देखकर समझ एकदम परेशान हो गया था। सरमद भाई प्लीज़ मेरी मदद करे, वो गुंडे घर तक आ गए हैं, प्लीज़ मुझे बचा ले वरना वो लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे। प्लीज़ सरमद भाई। यकदम हाल का दरवाज़ा टूट गया। आवाज़ सुनते ही मसाल फ़ोन फेंकती किचन की तरफ भागी। हेलो हेलो मसाल, मसाल तुम ठीक हो? सरमद परेशान हो गया था। उसने फ़ौरन घर से गाड़ी घुमाई। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। वो डर रहा था कि कहीं मसाल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मसाल ने किचन का दरवाज़ा बंद किया और अपने बचाव के लिए स्लीप पर रखी छुरी उठा ली। या तो इन्हें मार दूंगी या फिर खुद को मार डालूंगी, लेकिन हशाम मालिक के पास वापस नहीं जाऊंगी। मसाल ये ठान चुकी थी। रहमत शाह और उसके साथ उसे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अब बस किचन बाकी था। किचन का दरवाज़ा लाख देकर वो लोग समझ गए कि मसाल अंदर है। दरवाज़ा तोड़ डालो। रहमत शाह साथियों को हुक्म देता खुद पीछे हो गया। उसके साथ ही दरवाज़ा तोड़ने लगे। उन तीन हट्टे कट्टे लोगों के साथ ये लकड़ी का दरवाज़ा तो कुछ भी ना था। दो तीन सरब और धक्कों से ही टूट कर नीचे जा गिरा था। मसाल का सांस उसके सीने में जैसे अटक सा गया। वो खौफजदा सी उन चारों को देखने लगी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो मेरे करीबी मत आना। मसाल छुरी पकड़े उन्हें देखते हुए बोली।
रहमत शाह उसे देखते हुए इंतहाई अदब से बोला, मैडम आप खामोशी और इज़्ज़त के साथ हमारे साथ चल लें, हमें ज़बरदस्ती करने पर मजबूर ना करें। अगर आप हमारे साथ ना चली तो हमें मजबूरन आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, यही सरमद का आर्डर है। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं कहीं पर या तो तुम लोगों को मार डालूंगी या फिर खुद की जान ले लूंगी। मिसाल ने उन्हें खुद की तरफ बढ़ते देखकर उन पर छुरी से वार करना चाहा। एक आदमी का बाजू जो कि मिसाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था वो जख्मी हो गया था। वो दर्द से बिलबिला उठा। रहमत शाह बाकी दो साथियों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। मेरे पास मत आना। देखिए मैडम, हमें खुद के साथ जबर करने पर मजबूर ना करें, इज्जत के साथ चलें, ये मेरी आपसे लास्ट वार्निंग है। नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक है, भी चलो पकड़ो इसे, लेकिन खबरदार मैडम को कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। रहमत शाह ने सबको वार्न किया। वो तीनों जो ही मिसाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मिसाल उन पर अंधाधुंध छुरियों के वार करने लगी। किसी का हाथ, किसी की उंगलियां, किसी का बाजू तो किसी का गाल जख्मी हो गया था। मिसाल पागलों की तरह चीख रही थी, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, मैं मर जाऊंगी मगर इस जहन्नम में दोबारा नहीं जाऊंगी। सरमद ने गाहिर बाही ही खड़ी की थी और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। सामने ही दो गाड़ियां खड़ी थी। उसका मतलब था कि वो लोग अभी भी घर के अंदर मौजूद थे। अंदर जाते ही गेट पर ही उसे खुदा बख्शी खून में लथपथ लाश पड़ी मिली। सरमद को बहुत तकलीफ हुई थी। वो उसकी खुली आंखें बंद करता अंदर की तरफ भागा, क्योंकि अब उसे मसाल को बचाना था। पकड़ो इसे, अब की बार इस पर कोई भी रहम नहीं करना। रहमत शाह ने उसे अपने साथियों को हुक्म दिया। इससे पहले कि वो दोबारा से मसाल को पकड़ने की कोशिश करते, इसी वक्त सरमद हामता हुआ किचन में दाखिल हुआ। वो चारों उसकी तरफ मतवज्जा हुए। मसाल छुरी फेंकती बाका सरमद के पीछे जा छुपी। सरमद भाई प्लीज़ मुझे बचा ले। मसाल रोती हुई सरमद की शर्ट उससे पकड़े उसे पीछे जा छुपी थी। कौन हो भाई तुम, और हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रही हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की से? रहमत शाह ने सामने खड़े सरमद नकवी को देखते हुए पूछा। बहन है ये मेरी, और नाम तो सुना होगा मैं तुम लोगों ने। इस मुल्क का नाम मशहूर वकील सरमद मकसूद नकवी, ये नाम है मेरा। ये सुनकर वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, अब तो यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो तुम? रहमत शाह अच्छी तरह से जानता था कि सरमद नकवी कितना ताकतवर इंसान है, फिर भी वो उसे धमकाने से बाज ना आया था। वकील साहब, क्यों लोगों के छत्ते में हाथ डाल रहे हो? क्यों बड़ी जवानी से हाथ धोना चाहते हो? तुम नहीं जानते हो हमारे मालिक को? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों का पता किसके हाथ में है? हशाम मालिक नाम तो सुना होगा तुमने। हशाम मालिक ये नाम तो समद के सर पर धमाकों की तरह लगा था। उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खौफ से डरी सहमी सी लड़की मिसाल को देखा। ये हमारे मालिक की बीवी हैं, बराए मेहरबानी हमारे काम में टांग मत उड़ाएं और हमें हमारा काम करने दें। हशाम मालिक से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। ये मेरी एडवाइस है आपको, अब इज़्ज़त के साथ उन्हें हमारे हवाले कर दें। हम बगैर चूचरा की यहाँ से चले जाएंगे। मिसाल रोने लग गई। ये झूठ बोल रहे हैं सरमद भाई, खुदा के लिए मुझे इनके हवाले मत करें। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। मैं मर जाऊंगी लेकिन इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। रहमत शाह आगे बढ़ गया तो सरमद ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक लिया। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ये तो मेरी अमान में है और उसे कोई भी मुझसे जोर ज़बरदस्ती छीन कर नहीं ले जा सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो आगे बढ़े। सरमद का अंदाज़ा ललकारने वाला था। देखिए वकील साहब, ये दुश्मनी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। रहमत शाह ने उसे खौफजदा करना चाहा। मैं नहीं डरता किसी से भी, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। देखो वकील साहब, इस लड़की की बजाय अपने घर वालों के बारे में सोचो। हशाम मालिक तुम्हारा सारा घराना तबाह बर्बाद कर देगा। मैं नहीं डरता तुम्हारे हशाम मालिक से, जाओ कह दो इसे। सरमद मकसूद नकवी अगर एक बार किसी को अपनी अमान में ले ले तो फिर मरते दम तक उसकी हिफाजत करता है। देखिए वकील साहब, आप अच्छे आदमी लगते हैं, हमारी बात माने और इस लड़की को हमारे हवाले करें, वरना अभी कि अभी जान से चले जाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर का नामूर वकील हूँ, जहाँ सब लोग मुझे जानते हैं। सरमद अपना मोबाइल फ़ोन उनके सामने करते हुए बोला, मेरी एक फ़ोन कॉल पर जहाँ प्रेस के नुमाइंदे पहुँच जाएंगे और फिर जो मैं तुम्हारा तमाशा लगाऊंगा वो तुम्हारे मालिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर तुम लोग अपने मालिक की बुलाई चाहते हो तो फ़ौरन से पेशतर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं दूसरी बार वार नहीं करूँगा बल्कि सीधा कॉल ही कर दूँगा। रहमत शाह ने उसे देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में किसी रिपोर्टर का नंबर डायल करने लगा था। ये देखकर रहमत शाह सरमद को देखते हुए बोला, तुमने अच्छा नहीं किया वकील साहब, हमारे काम में और हमारी राह में रुकावट डालकर। देखना अब उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। रहमत शाह ने उसे तंबिया की, बहुत जल्द तुम हशाम मालिक के शिकंजे में फंसने वाले हो। सरमद मुस्कुराया, मेरी छोड़ो फिलहाल तुम लोग अपनी फिक्र करो, अब दफा हो जहाँ से। वो रहा दरवाज़ा, नाउ गेट आउट। सरमद ने दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। चलो, रहमत शाह से घूरता हुआ अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हुआ। उनके जाते ही वो मिसाल की तरफ मुड़ा। ये सब क्या था? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? सरमद दुश्तगी से बोला। उसे देखते ही मिसाल सर झुका कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे सरमद भाई, मैंने आपसे झूठ बोला। भाई भाई कहती हो लेकिन भाई मानती तो नहीं हो। अगर भाई मानना होता तो मुझसे ये सब ना छुपाती। सरमद को बहुत बुरा लगा था मिसाल का जो खुद से झूठ बोलना। मुझे माफ़ कर दे सरमद भाई, मैंने इसलिए आपको हकीकत नहीं बताई क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। वो बहुत बुरा इंसान है। उसने हर इंसान को मार डाला जो मेरा करीबी था या फिर जिसके साथ मेरा ताल्लुक रहा था। मिसाल बुरी तरह से रो रही थी। सरमद को उसकी हालत पर तरस आया था। वो इस बार अपना लहजा नरम करते हुए बोला, अच्छा इधर आओ, बैठो, जहाँ आराम से बात करते हैं। सरमद ने उसे पास तक की चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया।
हाँ, अब बताओ कि पूरी कहानी क्या है? तुम कैसे हशाम मालिक से मिली? मसाल ने अपनी आंसुओं से बड़ी आंखें उठाई और सामने बैठे समत नकवी को देखा। फिर वो बोलना शुरू हुई, मेरा निकाह मेरी खाला के बेटे के साथ बचपन में हो गया था। मसाल ने समत को अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना डाली और आखिर में वो अपने जज्बात पर काबू न रख पाती फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कई अपनों को खोया, इसलिए मैं डरती थी कि कहीं मैं आप जैसे इंसान को ना खो दूँ। मैं यहाँ से बहुत जल्द जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद कई लम्हे तक समत तो हमारे सदमे और दुख से कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने सामने बैठी इस मासूम सी लड़की को देखा जिसे इस माशरे के बेरहम लोगों ने धोखा दिया और उसकी मासूमियत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसकी नज़र से सोचते हुए उसे मसाल का फैसला बिल्कुल ठीक लगा था कि उसने उस पर यकीन ना करके बहुत अच्छा किया। अगर उसकी जगह कोई और होता। सरमद ने गहरी सांस भरी और फिर रोती हुई मिसाल के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा ही नहीं बल्कि दिल से माना भी है, और मैं तुम्हें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। ये एक बहन का भाई से वादा रहा। मैं तुम्हारे लिए हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर लड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कि वो घटिया इंसान अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मसाल के रोने में शिद्दत आ गई थी और सरमद उसके सर पर हाथ रखे उसे दिलासे और तसल्लियाँ दे रहा था। तुम्हारा अब शहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसके पास तुम चंद दिनों के लिए रह सको? जब तक कि मैं इस केस को देखूं तब तक तुम्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। मिसाल को अचानक सीधा याद आ गई थी, हाँ मेरी एक टीचर दोस्त है। तो फिर ठीक है, तुम उससे कोई बहाना बना लो कि तुम्हारे घर का कुछ काम चल रहा है। वो तुम्हें चंद दिन रहने दे, फिर मैं जब तक तुम्हारे रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लूँगा। आओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के घर छोड़ दूँ। सरमत ने उसे सिद्रा के घर छोड़ दिया था। मसाल ने सिद्रा से कहा कि उसके घर में कोई काम चल रहा है, इसलिए वो क्या उसे 2-3 दिन अपने घर में रहने दे सकती है, जिस पर सिद्रा ने उसे खुले दिल से खुशामदीद कहा था। जारी है।